Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, friends, that we don't address company-specific queries. You may call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं देश और दुनिया की चुनी हुई प्रमुख अर्थनीति, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर। हम आज के दिन यानी सोमवार के दिन आपको आमंत्रित किया करते हैं अपने साथ सवाल करने के लिए। हमारे कार्यक्रम में आप हो सकते हैं शामिल और पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। हमसे ये सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए फोन लाइन पर आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Equity benchmarks close with modest gains. Sensex ends at 38,182. Nifty settles at 11,270. Oil prices appreciate due to rising energy demand amid ease in lockdowns. And gold rises to 56,122 rupees per 10 gram in the national capital. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 38,182 पर हुआ बंद, निफ्टी 11,270 दर्ज हुआ। मांग बढ़ने की उम्मीद में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में दिखी वृद्धि और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य बढ़कर 56,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 142 अंक यानी 0.37% की बढ़त लेकर 38,182 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 56 अंक यानी 0.5% वृद्धि के साथ 11,270 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन मजबूत रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.42% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.47% की वृद्धि हुई। Well, equity benchmarks today closed with modest gains, tracking gains in L&T, ICICI Bank and HDFC Twins amid mixed Asian markets. After rallying 390 points during the day, the 30-share BSE benchmark paired some gains to end 142 points or 0.37% higher at 38,182. The NSE Nifty climbed 56 points or 0.50% to close at 11,270. In the broader market at BSE, the mid-cap closed 1.42% up and small-cap gained 1.47%. L&T was the top gainer in the Sensex pack, rallying over 4%, followed by M&M, Sun Pharma, NTPC, Tech Mahindra, ICICI Bank and ITC. On the other hand, Reliance, Asian Paints, Maruti, Bajaj Finery and Bajaj Finance were among the laggards. Bajaj Finza. According to traders, market sentiment was
positive amid mixed Asian and firm cues from European indices. Consistent foreign fund inflows also supported the domestic stocks. Exchange data showed that foreign institutional investors bought equities worth around 397 crore rupees on a net basis on Friday. हमारे साथ कई श्रोता इस दौरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से के मदन साहब को। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा की टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि वी आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी एंड दैट कंपनी वाज डीलिस्टेड। नाउ दैट कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी। What will the status of the share which we are holding? We could not sell in the market because these were delisted. I can give the example like Essar Steel has been taken over by ArcelorMittal. So what is the status of share we are holding for Essar Steel? Can you please guide us? Is it tradable, not tradable, but new company can buy it back? The shares that are delisted cannot be traded on the exchange. But you can trade it otherwise. If some investors want it, you can sell it to them. If the new takeover company wants to take some shares, then it will offer a particular share price. Or if they're bringing about a restructuring in their capital structure, then they may offer some shares of their company vis-a-vis the other shares that you are actually holding. So you can still trade depending upon the investors that are available for it, but not on the exchanges. Well, thank you, Dr. Yamini. That is actually quite often asked question. Well, moving on, we have Aditya from Thane. Yes, Aditya? Yes. हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स समझते हैं वो एक्चुअली में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उतने परफेक्टली नहीं होते। जो ट्रेड है या जो चीज़ें एक्चुअली में जो इकोनॉमी को इंडिकेट करती हैं वो इस समय ग्लिम होने के बाद भी पिछले हफ्ते मार्केट बढ़ा और आज के दिन शायद से मार्केट बढ़ा होगा, नहीं मार्केट नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते मार्केट बढ़ा था। तो आपको क्या लगता है इन्वेस्टर्स क्यों इतना पैसा इंडिया नहीं ग्लोबल में डाल रहे हैं? डिस्पाइट अगर उनके पास लिक्विडिटी है तो दूसरे एसेट्स के लिए जा सकते हैं लाइक बॉन्ड्स, लेकिन डेट सेगमेंट में तो पैसा कम डाल जा रहा है अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन विद लिक्विड मार्केट, मतलब शेयर मार्केट। तो आपका इस पर क्या कहना है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यू शेप रिकवरी होगी, कुछ लोग कहते हैं वी शेप होगी और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि एक्सटेंडेड डब्ल्यू भी हो सकता है रिकवरी में। तो आपका क्या मानना है कि कौन सी शेप की या किस तरीके की रिकवरी हो सकती है इंडिया की और वर्ल्ड की? जी, आपका पहला सवाल मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है उसको लेकर है। जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होती है वो ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ग्लोबल फ्लूज जैसे यूएस चाइना के जो ट्रेड टेंशन है उस पर इफेक्ट हुआ है। एफआईआईज के जो फ्लोज इंडिया में आए हैं उससे फर्क पड़ता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी की क्या ग्रोथ रेट है या वो कितना डिक्लाइन हुआ है या इन्फ्लेशन का क्या रेट है या आरबीआई ने क्या पॉलिसी लाई है, इन सभी चीजों पे देख करके फिर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट्स में बढ़ोतरी इसलिए नजर आई थी या एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अर्निंग सीजन है और बहुत सारी कंपनीज ने अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करने शुरू कर दी है। इस वीक में भी माना जा रहा है कि वॉलेटिलिटी नजर आएगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में होगा जहां पे अर्निंग्स डिफाइन करेंगी कि स्टॉक्स में कहाँ पे चेंजेस आएंगे। आईआईपी का इंडेक्स और इन्फ्लेशन भी आगे डिफाइन करेगा कि कैसे मूवमेंट रहेगी। पिछले सप्ताह आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे बहुत फर्क पड़ा था। आपका दूसरा सवाल है कि रिकवरी किस तरह से होनी चाहिए, कि बहुत मानना है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आएगी और जिसकी वजह से अगर कोरोना वायरस बढ़ता है तो फिर वापस लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से डब्ल्यू शेप रिकवरी हो सकती है। वी शेप रिकवरी माना जा रहा है कि कोरोना वायरस एक बार बढ़ करके फिर कम होगा और इकोनॉमी जो है लॉकडाउन से हट करके रिकवर पोजीशन पे वापस अपनी ग्रोथ पे आएगी और मांग बढ़ेगी। जैसे आप ऑयल का भी प्राइसेस अगर देखें तो बढ़ रही है, तो माना जा रहा है कि वी शेप रिकवरी ज्यादातर देखी जाएंगी अगर लॉकडाउन नहीं हुए तो। यानी डब्ल्यू मामला हो या वी मामला हो, दोनों में ही विक्ट्री है। यदि सोच समझकर निवेश हो तो खतरे की आशंका कम रहेगी, ऐसा हम देख पा रहे हैं। बहरहाल आइए चलें गुरुग्राम से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर सागर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछें। नमस्कार सर।
जी नमस्ते। My question is again regarding delisting. There is one company which is saying that we are going to delist, and I'm holding some shares of that. So what should we do? Should we sell those shares before the company delists, or can we hold them even after delisting? And then what will happen to those shares after delisting? You can continue to hold them after delisting, but you should remember that you will not have an exit option available in the stock exchanges for that. However, if you find investors from the company, like sometimes the management or certain other investors who want to buy the particular stock, then you can sell it to them. It is always better to move out of a company which is delisted, because the exit tends to get reduced in terms of your getting liquidity as and when required, because they have got delisted from the stock exchange. Well, thank you so much. Yes, so there are always questions on delisting of shares, what to do with them once they are delisted. Well, we move on. We have Vijay Kumar from Chennai this time. Yes, Vijay. Hello. Hello. विजय जी आप जुड़ चुके हैं हमसे, सवाल पूछिए। हाँ जी, थैंक यू। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम एंड यामिनी जी। जी नमस्ते। During the course of stock market analysis in different media, very often we hear the term gap up, gap down, and short covering. Would you please explain to me how to understand these terminology, gap up, gap down, and short covering? Well, I don't know exactly. Gap down is what you're referring. When you sell, in the future, and when you buy in the future and you sell today, primarily on the assumption that the prices will go down and you will be able to make gains in the future. दिल्ली से हमारे साथ हैं रत्नाकर। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। जी नमस्ते। पहले बैंक का एक एनपीए का पॉलिसी होता था एंड द लोन अकाउंट वाज डिक्लेयर्ड एज एनपीए, बट रिसेंटली आरबीआई हैज लॉन्च्ड डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी. So what is the difference in the procedure of declaring a loan account as NPA now? The RBI has said that in case, because of the COVID, if a particular account was a standard account before 1st of March 2020, then it will continue to remain a standard account, and the benefits that the bank extended to the company would continue to remain as that. However, now the company has said that if it is a standard account, and then the moratorium may not be continued for them, but they may be provided for a restructuring plan where you may actually structure it in such a manner that the interest as well as the principal payments may be deferred for a longer period of time, so that the burden of the repayments may be reduced. Restructuring usually takes place in banks for many of the NPAs, but in case of an NPA, usually you could go to an NCLT after a certain specified period of time. Right. We now have Ashok Kumar from Modi Nagar. Ashok ji, सवाल पूछिए. हेलो जी. हाँ नमस्कार जी. यामिनी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनका फ्यूचर क्या लग रहा है, और पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या फ्यूचर है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, दोनों में? ये आपका पहला सवाल ऑयल कंपनी से है. अगर आप देखें, ऑयल की डिमांड जैसे जैसे इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं वैसे वैसे बढ़ रही है, तो फ्यूचर ब्राइट ही है, क्योंकि ऑयल की जरूरत अभी काफी कंटिन्यूड रहेगी जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे नहीं पहुंचते. दूसरा आपका सवाल था पीएसयू बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अर्निंग सीजन जैसे जैसे इस वीक में आप देखेंगे कि डिफरेंट बैंक्स अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगे, आप उनके स्टॉक्स में रिटर्न्स की मूवमेंट भी देखेंगे. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, उनके अंदर काफी स्टेबिलिटी मेंटेन की गई है और गवर्नेंस भी स्ट्रिक्ट की गई है. प्राइवेट बैंक्स भी ओवरऑल कंटिन्यूड वे में एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन दिखा रहे हैं और सस्टेन्ड लेवल्स दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल बैंकिंग की स्थिति काफी रिजिलियंट है. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख देखने को मिला है.
निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.5% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग 0.6% नीचे आ गया। जापान और सिंगापुर के शेयर बाजार आज बंद रहे। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक हल्की लिवाली दिख रही थी। लंदन का FTSE 100 0.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 0.4% फायदे में था। जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा था। रुपए की स्थिति पर भी ध्यान दे दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे मजबूत हुआ। 74 रुपए 90 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। And now we're joined by Pankaj from Delhi. जी पंकज, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए पंकज। मैडम मेरा सवाल ये है कि ये जो गोल्ड ETF है इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, और गोल्ड जैसे हम इसमें क्या एक यूनिट कुछ परचेज करनी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए, और एक दो अगर कोई गोल्ड ETF के नाम बता पाए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। जी, गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। आप डीमैट अकाउंट खोल करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बेसिकली आपने यूनिट्स लेनी होती है और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाजार की गतिविधि पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। यामिनी जी, बाजार में आज कारोबारी सप्ताह का पहला दिन है और आज भी हमने बढ़त का सिलसिला देखा है। बाजार का मूड क्या दर्शा रहा? जी, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अर्निंग सीजन है, तो बैंक्स की जो रिपोर्ट्स आएंगी या कुछ अभी कंपनीज की जैसे अर्निंग्स रिपोर्ट होंगी, उसी पे डिपेंड करेगा कि मार्केट्स ओवरऑल क्या सेंटिमेंट लेती है। कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और एक डे टू डे बेसिस पे काफी इंक्रीज नजर आ रहा है, पर उससे मार्केट्स के ऊपर इतना नेगेटिव असर नहीं आ रहा, बिकॉज माना जा रहा है कि वैक्सीन जल्दी ही डेवलप हो जाएगी और लोग काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और रिकवरी जो है कंटिन्यूअस है। ये भी देखा जा रहा है कि यूएस चाइना के जो टेंशंस हैं उसकी वजह से भी FII फ्लोज का इफेक्ट पड़ रहा है, जहां पे FII चाइना में इन्वेस्ट करने की जगह इंडिया में प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्ट करना। जैसे आपने मार्केट मंत्रा में कहा भी कि FII का फ्लो इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है। Well, that certainly sounds nice. Well, we're joined now by CA Pattu from Mumbai. हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मंत्रा जी। नमस्कार। मेरे दो सवाल है साहब जी। ये जो कंपनी है पब्लिक से पैसा निकलते है और बाद में वो लिस्ट हो जाती है, तो सेबी उसके बारे में कुछ एक्शन लेती नहीं है। वो उनके पास वो पब्लिक का पैसा रहता है, तो लॉस होता है पब्लिक का। और सेकंड मेरा सवाल है कि सोने का इतना सोना है, गोल्ड इतना बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ने का फायदा क्या और कितना बढ़ेगा? जी, आपका पहला सवाल है कि जो डीलिस्टिंग होती है वो कंपनीज जो है बहुत सारे कारणों की वजह से करती हैं, क्योंकि कभी कभार शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं और उन्हें टेक ओवर होने का खतरा रहता है। कभी कभार लिस्टिंग नॉर्म्स बहुत ज्यादा टीडियस होते हैं और वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाती, इसलिए वो डीलिस्ट हो जाती हैं। शेयर होल्डर्स के लिए ये बेहतर रहता है कि वो डीलिस्टिंग से पहले अगर अपने शेयर्स बेच सकें किसी इन्वेस्टर को तो ज्यादा बेहतर होगा। कभी कभार कंपनीज बायबैक्स ऑफर करती हैं, उसमें बेचना भी फायदेमंद रहता है, वरना मैनेजमेंट को या जो उनके सीनियर प्रमोटर्स हैं या किसी को अप्रोच करके आप अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था गोल्ड को लेके, जहाँ पे गोल्ड है वो उसमें हम इसलिए बढ़ोतरी देख रहे हैं क्योंकि जो सेफ एवेन्यूज माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें गोल्ड सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना जाता है जब कंडीशंस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हों और बहुत सर्टेन ना हो। क्योंकि कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और रिकवरी में सर्टेनिटी कुछ काफी लोगों को नहीं नजर आती, तो वो गोल्ड जैसे एक सेफ हेवन में इन्वेस्ट करते हैं। आपका सवाल सेबी से भी रिलेटेड था। सेबी सिर्फ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन करती है और कंपनी का डिसीजन वो लिस्ट करे या ना लिस्ट करे उस पे जो है कार्रवाई नहीं करती।
Well, Dr. Yamini, I think India being one of the largest consumers of gold, I think this is something which would be on many of our listeners' minds, that gold is rising fast and we have festivities and marriage season coming very fast, very soon, approaching very fast. So let's hope some fears have been allayed to rest. We have now Ratnakar from Mumbai. रत्नाकर जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सवाल पूछिए जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। स्वागत आपका। हाँ, आने वाले कुछ दिन में ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? और दूसरा मेरा सवाल है कि लार्ज कैप शेयर जो है बड़े अमाउंट वाले, वो लेने का अभी सही टाइम है क्या? इट इज रियल टाइम क्या है इसका? जी, आपका पहला सवाल ऑटो और आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर में कुछ कंपनीज ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और अगर आप कंपनी स्पेसिफिक जाएं तो वो कंपनीज ने वैल्यू भी ऐड की है, अर्निंग सीजन में भी और वैसे भी ग्रोथ में भी। जहां तक ऑटो सेक्टर है, वहां पे रिटेल में ग्रोथ नजर आई है मंथ टू मंथ बेसिस में, पर ओवरऑल मार्केट्स डाउन है, क्योंकि जो है अभी पूरी तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक्स ने भी जो है अभी लोन्स नहीं दिए हैं, लोग अभी व्हीकल्स नहीं खरीद रहे हैं। पर जैसे रिकवरी आएगी वैसे वैसे ऑटो सेक्टर भी बढ़त की तरफ जा सकता है, पर अभी थोड़ा डाउन ही रहेगा। आपका दूसरा सवाल था कि दूसरा सवाल मेरे ध्यान से निकल गया। हम आगे बढ़ जाते हैं यामिनी जी। एक सवाल का हमने जवाब दे दिया, अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME, Nitin Gadkari has said that the recent steps taken by the government to give relief to MSMEs will accelerate the wheel of economy. He said changing the definition of MSMEs, scheme of fund of funds, Champions portal, extended credits to MSMEs will certainly accelerate the economy, which had slowed down due to lockdown in the wake of pandemic. Addressing a virtual MSME conclave organized by FICCI, Mr. Gadkari said loans of about 1,20,000 crore rupees have been disbursed to MSMEs out of 3 lakh crore rupees announced in the relief package. He said that instructions have been given to all ministries, departments and PSUs to clear pending bills of MSMEs within 45 days. The minister also urged all chief ministers to issue directions for clearing MSME dues by their state and union territories on priority. आइए चलें गाजियाबाद से हमारे साथ हैं गौरव जी, स्वागत आपका। सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल लेडीज एंड यंग मैन। सर ये बताएंगे, मैडम ये बताएंगे कि ये जब मैं 100 रुपए की इक्विटी मार्केट में लगाता हूँ या सोने में लगाता हूँ, तो सोने के पैसा को इट गोज टू द फॉरेन कंट्री, टू द प्रोड्यूसर, द माइनर, इट डजंट हेल्प माय कंट्री। इफ आई इन्वेस्ट इन इक्विटी, हाउ डज इट हेल्प आवर कंट्री? ये हमारे देश को कैसे मदद करता है? इन दूसरी शब्दों में शेयर की प्राइसेस ऊपर जाती हैं क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे कंपनी का क्या फायदा होता है और देश का क्या फायदा होता है? बिकॉज ये तो कुछ समझ नहीं आया कि हाउ डज दिस इक्विटी इनफ्लो विच इज नाउ हैपनिंग, हाउ डज इट हेल्प आवर कंट्री एंड इकोनॉमी? जी, इक्विटी मार्केट्स जो है कैपिटल मार्केट्स का पार्ट होती है। कैपिटल मार्केट्स जहाँ पे कंपनीज अपने लिए कैपिटल रेज कर सकती हैं या फंड ले सकती हैं। जब वो रेज कर देती हैं, उन्हें वो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं और उन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। क्योंकि उन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और वो कैपिटल अप्रिशिएट करते हैं, जब लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों का निवेश कंटिन्यूस रहता है और बाकी ये कंपनीज वहां पे आकर के अपने लिए कैपिटल रेज कर पाती हैं और इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट रूट प्रोवाइड कर पाती हैं जहां से वो अपना पैसा बना सके और निकाल सकें। तो ये एक प्रक्रिया है या एक इकोनॉमिक साइकिल है जिसके तहत इंडस्ट्री को कैपिटल मुहैया कराया जाता है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मुहैया कराया जाता है। And now we're joined by Mushtaq Ali from Kolkata. And just a reminder, Dr. Yamini, the previous question was on large caps, investment in large caps, which you can answer after this one. Thank you. Yes. अच्छा, मैं सेना हूँ मैम। जी हेलो। जी सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। तो आपको ये पूछना है कि जितने में मार्केट बंद होता है दूसरे दिन उतने में नहीं खुलता है, या तो ऊपर खुलता है या नीचे, इसका क्या वजह है? वो रात में तो ट्रेडिंग नहीं होता। अच्छा, 9:15 AM के पहले क्या हम लोग
ट्रेड कर सकते हैं बल्क में या ऐसा कुछ होता है, इसके बारे में जरा बताइए। थैंक यू। जी, ट्रेडिंग आवर्स होते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये ट्रेडिंग में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो प्राइसेस कोट की जाती हैं उनमें जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो डिफर करता है। तो वो किस पर्टिकुलर प्राइस पे इन्वेस्टर्स बुक करते हैं या स्टॉक रजिस्टर करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट्स आपको क्या वैल्यू देती हैं। एक जो सवाल था लार्ज कैप का जो रह गया था, उसके लार्ज कैप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम है क्योंकि जो अभी ओवरऑल प्राइसेस हैं लार्ज कैप्स की लोअर लेवल पर हैं, पर उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आप वैल्यू हो और जिन कंपनीज के अंदर आपको लगता है कि ग्रोथ नजर आए। Well, moving on, thank you very much, Dr. Yamini. Moving on to oil. Well, oil today rose, supported by an improvement in Chinese factory data and rising energy demand as countries eased coronavirus-related lockdowns. But traders remained cautious due to US-China tensions and uncertainty over a US stimulus package. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $44.80 per barrel, while WTI crude prices were around $41.80 per barrel. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं एक श्रोता भूपन। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। हाँ, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, मेरे सवाल दो हैं। पहला सवाल, जो मेरे पास एक 2-3 कंपनी के शेयर है जिसको डीलिस्टेड होके 10 से 11 साल हो गए हैं, तो वो फिर से रीलिस्ट होने को कितना टाइम लगता है, थोड़ा बता सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस और ये कोऑपरेटिव बैंक को भी अभी आरबीआई के अंडर ये कर दिया रेगुलेशन में, तो अभी बैंकों के कोऑपरेटिव बैंक को चाहे बैंक प्राइवेट कोई भी बैंक हो, उसमें 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कर दिया। तो नॉन बैंकिंग जो इन्वेस्टर है, इसमें अभी भी 5-6 कंपनियां हैं जो अभी भी फंड कलेक्ट करती है लोगों से और इंटरेस्ट 1% ज्यादा होता है बैंकों से, तो इनको भी इंश्योरेंस के इसमें दायरे में लाया जाए तो सेफ नहीं है? क्योंकि वो ये अभी भी सवाल छोटा रखें, समय कम है। जी, आपका पहला सवाल, 3 कंपनीज जो डीलिस्ट हो गई हैं, उन डीलिस्टिंग के अंदर ज्यादा समय नहीं लगता। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करें तो उस लिस्ट करा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, तो क्योंकि डीलिस्टेड है जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट हो आगे आने वाले समय में। एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक को लाया गया है दायरे में, पर कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेटरी दायरे में इसलिए लाया गया है ताकि बैंकिंग की रेजिलियंस बढ़ाई जा सके और लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग के अंदर कंटिन्यूअस मेंटेन किया जा सके। क्योंकि एनबीएफसी बैंक डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करती, अलाउड नहीं होती, इसलिए उनके लिए ये 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो अवेलेबल नहीं है। दायरे में लाना चाहिए या नहीं, वो एक पर्टिकुलर डिबेट की बात है। उसके ऊपर पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और तभी बताया जा सकता है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें सर्राफा बाजार की ओर। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य 238 रुपए बढ़ा है, 56,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 960 रुपए उछलकर 76,520 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़कर $2,035 प्रति औंस हो गया। चांदी $28.31 प्रति औंस हो गई। बहुत संक्षेप में, मात्र 20 सेकंड समय हमारे पास है। चांदी के जो कीमतें तेज हुई हैं उसके पीछे क्या कारक, बहुत संक्षेप में? ये सेफ हेवन है, एक मेटल्स में इंक्रीज नजर आ रहा है, वही कारण माना जाता है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से यामिनी जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, friends, a reminder of the headlines. Equity benchmarks close with modest gains. Sensex ends at 38,182. Nifty settles at 11,270. Oil prices appreciate due to rising energy demand amid ease in lockdowns. And gold rises to 56,122 rupees per 10 gram in the national capital. And with that, we end this edition of Market Mantra. On behalf of my co-anchor, Manoj Pathak, and myself, Lalima Aneja Dang, we bid adieu. Namaskar. Market Mantra.
Market Mantra.